Hello viewers, welcome to my channel and our today topic is pronoun and kinds of pronoun. We all know about pronoun, so let's understand the topic. Pro plus noun. It consists of two words, pro plus noun. Pro means in place of and noun means name. Means pronouns are those words that can replace a noun in a sentence. एक सेंटेंस में जो नाउन को रिप्लेस कर दे उन वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं. यू कैन से सर्वनाम, हम उन्हें सर्वनाम भी कहते हैं. हिंदी में आप सबने सर्वनाम भी पढ़ा हुआ है. तो प्रोनाउन जो है सेंटेंस में जहाँ भी आप नाउन का यूज़ करते हो हम उसकी जगह रिप्लेस करते हैं. वाई? टू अवॉइड द रिपीटेशन. हमें रिपीटेशन ना हो सेंटेंस में. नाउन बार बार नाउन जब रिपीट होता है उससे बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल. राहुल इज़ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय. राहुल इज़ गुड एट स्टडीज़ एंड राहुल्स ब्रदर्स एडमायर राहुल. राहुल मेहनती है, राहुल पढ़ाई में अच्छा है और राहुल का भाई जो है उसकी बहुत तारीफ भी करता है. सो यू कैन से द वर्ड राहुल इज़ हेयर एंड मैनी टाइम्स. राहुल यहाँ पर वर्ड जो बहुत बार है. सो टू avoid the repetition of the word Rahul, we use pronoun. And pronoun is limited, or pronoun you can say we use pronoun for the particular noun or particular thing. जो particular noun है you can say male, female, singular, plural, उनके अकॉर्डिंग जो है हम उसी के अकॉर्डिंग pronoun यूज़ करते हैं. लाइक राहुल. राहुल के लिए हमने यूज़ किया है यहाँ पर ही वर्ड हमने यूज़ किया है राहुल के लिए. ठीक है, हमने यहाँ पर राहुल के लिए ही यूज़ किया है. सेकेंड सेंटेंस आप देख सकते हैं राहुल्स ब्रदर, राहुल का भाई. तो राहुल का भाई मीन्स उसका भाई. दैट्स वाई वी यूज़ हिज. एट लास्ट राहुल लिखा है तो ही जब सब्जेक्ट के प्लेस पर हो तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हम हिम यूज़ करते हैं. दैट्स वाई वी आर राइटिंग हिम हेयर. सो ही, हिज, हिम, दीज आर कॉल्ड pronoun which are used in the place of Rahul to avoid the repetition. जो राहुल की प्लेस पर यूज़ किए गए हैं रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए. सो काइंड्स ऑफ pronoun. We have in total 10 kinds of pronoun. First one is personal pronoun, second reflexive pronoun, third emphatic pronoun, fourth reciprocal, fifth demonstrative pronoun, sixth indefinite pronoun, seventh interrogative, eighth distributive, ninth relative pronoun, and the 10th one is possessive pronoun. So we will discuss all the pronoun one by one. In this video I will make you understand 4 types of pronoun, 4 kinds, and in the next video you will able to understand next 6 kinds of pronoun. So first kind is personal pronoun. Person, you can say personal word में एक word छुपा हुआ है person, means that indicate the person, जो person को indicate करे. So it act as a subject और ऑब्जेक्ट. ये एक्ट सब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है. मीन्स सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरह. मीन्स इट इज़ यूज एट द सब्जेक्ट प्लेस एंड एट द ऑब्जेक्ट प्लेस. यू कैन सी हेयर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स there are some pronoun which we use in the place of subject and it will change in another pronoun when it comes at the object place. Like I means मैं, but when it comes at the object place I convert into me. Me means मुझे. She likes me, वह मुझे पसंद करती है. Same here we means हम. We did it, हमने ये काम कर लिया. We हम. But when it comes at object place then its mean is हमें. इसका मतलब आ रहा है हमें. You तुम. You will not change. You remains constant at subject and object place. He means वह, that is used for masculine person and he changes into him. She is used for female and she changes into her. Next is they means वे. they का मतलब होता है वे. he and she, these are singular, but when we discuss it into plural then it becomes they. तभी they में change हो जाता है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ही आगे दिया हुआ है इन्होंने. it, आगे it given है. it becomes it at object place but it is used for non living thing and animals. it जो है वो non living के लिए और animals के लिए यूज़ होता है.
ठीक है. सो पर्सनल प्रोनाउन एक्ट एज अ सब्जेक्ट एंड एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट. नाउ come to the point, there are three persons. Who are these three persons? First person, second person and third person. First person refers to the person speaking. जो person बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही, I am here talking, then I am the first person. We are singing, हम गाना गा रहे हैं. So हम यहाँ पर गाना कौन गा रहा है? हम गा रहे हैं. बोल कौन रहा है? हम. That's why we is first person. ओके. सेकेंड पर्सन रेफर्स टू द पर्सन स्पोकन टू. हम जिससे बात कर रहे हैं. लाइक आई एम टॉकिंग टू माई व्यूअर्स. मैं अपने व्यूअर्स से बात कर रही हूँ. तो आप व्यूअर्स हैं. अगर एक व्यूअर की बात की जाए तो हम, और एक से ज़्यादा की बात की जाए, देन यू जो है बेटा, यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, वेदर इट इज सिंगुलर और वेदर इट इज प्लूरल. योर एंड योर्स. योर तुम्हारा एंड योर्स ऑल्सो तुम्हारा, बट इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन. थर्ड पर्सन आपका होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है. लाइक हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक प्रोनाउन. आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द सेकेंड पर्सन, दैट यू आर लिसनर. एंड थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो. इट कैन बी अ थिंग, वो चीज़ भी हो सकती है. सो हेयर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टॉपिक के बारे में. द टॉपिक इज प्रोनाउन. सो द टॉपिक प्रोनाउन इज द थर्ड पर्सन कंसिडर हेयर. ठीक है. वी आर डिस्कसिंग इट, हम डिस्कस कर रहे हैं. थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, वेदर इट इज पर्सन एंड वेदर और थिंग, वो चीज़ भी हो सकती है और कोई इंसान भी हो सकता है. दीज आर द वर्ड्स विच इज कंसिडर्ड इन द थर्ड पर्सन. ही, शी, इट. एंड ही से रिगार्डिंग वर्ड है हिम एंड हिज. शी से रिलेटेड वर्ड है हर. इट का है इट्स. एंड दे से रिलेटेड हो गया आपका देम और देयर. सो दीज आर द पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. एंड पर्सनल प्रोनाउन एक्ट एज अ सब्जेक्ट एंड एट द object. Okay, kind is demonstrative pronoun. Demonstrative. Here a word demonstrate. Demonstrate means which we show, जो हम show करते हैं. Used to pointing out the subject, जो object को point out करने के लिए, means इशारा करने के लिए हम use करते हैं, that is demonstrative pronoun. And in demonstrative pronoun we use 4 words: this, these, that and those. And this is used for singular and these are used for plural. these हम plural के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. this जो चीज़ हमारे पास में है, नियर है और एक है, सिंगल है और पास में है. बट these जो पास में है बट प्लूरल है, एक से ज़्यादा है. सेम हियर दैट का मतलब होता है वह मीन्स जो चीज़ हमारे पास में नहीं है. इट मीन्स दैट इज़ फार टू अस, जो हमसे दूर है. दैट इज़ यूज फॉर सिंगुलर. सेम हियर दैट का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा दोज. दोज जो दूर है हमसे, फार है, बट इन प्लूरल फॉर्म, जो प्लूरल फॉर्म में. दोज आर पेन्स, वे पेन है, वे कलम है, कह सकते हैं आप. ठीक है. सो दिस का प्लूरल फॉर्म हो गया दीज एंड दैट का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा हमारा दोज. दैट इज़ यूज फॉर पॉइंटिंग आउट द ऑब्जेक्ट. जो चीज़ें हमारे पास में या हमसे दूर है, हम इशारा करते हैं जिन चीज़ों के ऊपर, उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नाउ नेक्स्ट काइंड इज इंटेरोगेटिव. मीन्स व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस, जब हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, बट द क्वेश्चंस विच वी पुट दैट इज़ रिलेटेड टू द नाउन. मीन्स हमें कोई नाउन का, हमें या प्रोनाउन का आंसर जब हमें मिल रहा हो, देन दैट वर्ड, दैट इंटेरोगेटिव वर्ड, और यू कैन से WH फैमिली वर्ड इज नोन एज इंटेरोगेटिव. बट दैट इज ओनली इंटेरोगेटिव, नॉट प्रोनाउन. प्रोनाउन डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है. लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वर्ड्स हैं: हु, what, which, whom and whose. It means who means कौन, what means क्या, which कौन सा, whom किसको, and whose किसका. प्रोनाउन जिसमें हम सब्जेक्ट के प्लेस पर हम यूज़ कर रहे हैं एंड वी गेट द आंसर ऑफ नाउन. और प्रोनाउन जब हमें नाउन या प्रोनाउन का आंसर मिलता है, देन दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. बट द डिफरेंस इज, यू कैन से हुज आर दीज बुक्स, या बुक्स किसकी है. आप देख सकते हैं हुज के बाद कोई भी नाउन गिवन नहीं है. यहाँ पे जो आंसर हमें मिलेगा वो हमें नाउन मिलेगा और प्रोनाउन मिलेगा. और प्रोनाउन आपको पता है जो नाउन के साथ, नाउन के प्लेस पे यूज़ किया गया है. तो यहाँ पर अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन ऐसा बना हुआ हो
whose books are these, ये किताबें किसकी हैं। तो यहाँ पर whose के बाद आप देख रहे हैं books आपका एक noun है, तो ये वाला whose आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पर आपको जो भी वर्ड दिया गया है WH फैमिली का, उसके बाद कोई नाउन नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्रोनाउन का मतलब ही है नाउन के प्लेस पे यूज होना। सो हाउ कैन वी से दैट नाउन कम्स आफ्टर द WH फैमिली वर्ड। नाउन जो है वो हमारा WH फैमिली के वर्ड नहीं आना चाहिए, बिकॉज वो उसी प्लेस पर आ रहा है। नेक्स्ट है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव मीन्स यू कैन से इट यूज फॉर पोजेशन, पोजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आप कहते हैं ना पर्सन पोजेसिव है। पोजेसिव क्यों होते हैं? बिकॉज वो उस चीज़ पे अपना हक समझते हैं। तो पोजेशन मीन्स व्हेन वी शो दैट दैट पर्सन और दैट थिंग इज रिलेटेड टू यू, रिलेटेड टू मी, रिलेटेड टू दैट गर्ल, रिलेटेड टू दैट बॉय, कोई भी चीज़ किसी की होती है, देन दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पर भी आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड एक पॉजेसिव प्रोनाउन। देयर इज़ अ माइन्यूट डिफरेंस। माइन्यूट डिफरेंस क्या है आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पर हमने यूज़ किया है आई, वी, यू, ही, शी एंड दे। व्हेन वी डिस्कस इट इनटू पॉजेसिव प्रोनाउन, जब हम इसे पॉजेसिव प्रोनाउन में यूज़ करेंगे तो यहाँ पर माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, मोस्टली आप देख सकते हैं इनके पीछे एस का यूज़ किया गया है, ठीक है, सिर्फ माइन को छोड़कर। तो इसमें आपके पॉजेसिव प्रोनाउन आपके और पॉजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस है। जब भी आपके ये वर्ड यूज़ किए जाएंगे तो इनके तुरंत बाद नाउन आना चाहिए। माई बुक, आर बुक्स, योर बुक, नाउन आना चाहिए। बट पॉजेसिव प्रोनाउन है तो नाउन के प्लेस पे ही यूज़ हो रहा है, तो उसके बाद कोई नाउन आएगा नहीं। सेकेंड थिंग, इट इज़ यूज एट द ऑब्जेक्ट प्लेस, या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज़ होता है। जैसे आप देख सकते हैं सेंटेंस में, कविता इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, कविता मेरी फ्रेंड है। द बुक ऑन द टेबल इज़ योर्स, जो टेबल पे किताब है वो तुम्हारी है, ठीक है। तो यहाँ पर योर्स आ गया, और अगर एडजेक्टिव में यूज़ होगा तो योर्स का हो जाएगा योर। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज वर्ड्स। दिस इज़ योर बुक, आप देख सकते हैं योर के बाद बुक नाउन गिवन है, तो योर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। बट यहाँ योर्स है, योर के बाद एस भी आ गया सेकेंड, इट इज़ यूज एट ऑब्जेक्ट प्लेस, देन दैट इज पॉजेसिव प्रोनाउन।